بس اس کے علاوہ سیالکوٹ کا اور بتائے ذرا، کہیں پہ کوئی ذکر ملتا ہے؟ نہیں ملتا، حالانکہ وہ جو میں نے کتاب کل پڑھی ہے، پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ مرزا صاحب سیالکوٹ میں 4 سال نہیں، وہ تو 7-8 سال رہے ہیں وہاں پہ۔ بھائی محترم بھائی، جی سر۔ گلوبل صاحب نے یہ کہا ہے کہ مرزا جی جب پیسے چوری ہو گئے تھے نا، بقول ان کے کہ انہوں نے پیسے چرائے ہیں اپنے باپ کے، وہ فنکشن کے محمدین کے ساتھ، وہ ہیرا منڈی جاتے رہے ہیں، یہ انہوں نے ثابت کرنا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی، آپ ان کی مدد کیجیے، کیونکہ آپ کے روڈ پہ آ کے یہ بڑا جھوٹ بولتا ہے، آپ ان کو بولتے بھی نہیں، آپ کتنے اچھے آدمی ہیں، لیکن آپ ان چیزوں پہ خاموش ہیں۔ مجھے آپ بہت دکھ ہے کہ آپ جیسا ایک سمجھدار انسان، تمہارے روڈ پہ آ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کہتے، گالی بھی دیتے ہیں، اور عبارتوں کو کاٹ کوٹ کے ان پہ خیانت کر کے بھی پیش کرتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں بولتے، آپ خود نہیں کرتے ہو، میں نے آپ کو واچ کیا، آپ خود نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ آپ کے بروڈ پہ آپ کے سرپرستی میں یہ ہو رہا ہے، کم از کم آپ کی تعلیم تو اتنی ہونی چاہیے کہ بھائی اس طرح کی بات مت کرو، یہ آپ نہیں کرتے، یہ تو ایک مسئلہ ہے۔ اب آپ میرے بھائی گلوبل صاحب کا مدد کریں، اگر وہ ہے، میں ابھی اعلان کرتا ہوں کہ جو ہے گلوبل نے صحیح کہا تھا، مجھے معلوم نہیں تھی یہ بات، میں معذرت کرتا ہوں، وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ شرمندہ ہے، اتنا شرمندہ ہے کہ اس نے ننگی ننگی گالیاں دی ہیں مجھے، حالانکہ بات بھی کچھ نہیں ہے، میں نے تو اتنا مطالبہ کیا ہے کہ بھئی جو تم نے بات کی ہے وہ پیش کرو، اب پیش وہ نہیں کر پائے، شرم کے مارے ننگی ننگی گالیاں دے رہے ہیں، میرے پاس موجود ہے، چاہو تو آپ کو دے دوں، ننگی ننگی گالیاں۔ تو بھائی جان، ہے تمہارے پاس کوئی ایسے اسکیل ہے جس میں یہ بات ثابت ہو جو گلوبل نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ ہیرا منڈی جاتے رہے ہیں؟ یہ اس کا جواب دے دیجیے بھائی۔ جی افغانی صاحب، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ صرف ایک قیاس ہے کہ وہ پینشن لے کے لاہور تک تو ثابت ہے کہ وہ لاہور گئے، آگے ہیرا منڈی وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب قیاس ہے، کہیں پہ بھی کوئی حوالہ نہیں ملتا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو یعنی ہیرا کوئی منڈی کے یہ حوالہ حوالے نہیں ملتے ملتا ہیں۔ بھائی جان، یعنی کہیں یہ حوالہ جی نہیں جی، ملتا کہ وہ ہیرا منڈی جاتے رہے ہیں؟ پینشن کے پیسے لے کے، پینشن کے پیسے ہاں لے کے ہیرا ہاں منڈی، ایسا کوئی ہاں، حوالہ نہیں ملتا۔ اچھا ٹھیک، یہ ٹھیک ہے بات جی، کلیئر ہو گئی، ہاں جی، یہ کلیئر ہو گئی۔ لیکن کیا کوئی اس ایسا کے حوالہ بعد، ہے؟ ہاں جی اس کے بعد ویسے یہ وہاں پہ ان کے کسی مرید کا مکان تھا ہیرا منڈی میں، ہاں وہاں پہ جا کے مرزا صاحب ٹھہرتے رہے ہیں، یہ ہاں ڈاکٹر ہاں 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 یعقوب جو ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور تاریخ احمدیت کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی ڈاکٹر مرزا یعقوب جی صاحب۔ ہاں جی ہاں ہاں ہاں۔ جی جی ایک میں دفعہ پتہ جی نہیں پڑا ہے پھر۔ وہ پتا کیا تھا ہے، وہ پیر حوالہ، صاحب، وہ حوالہ دے دیجئے گلوبل کو، تاکہ جو ان کی جو شرمندگی ہے وہ تھوڑا سا کول ہو جائے اس کو لے کر، لیکن اس میں جو بات انہوں نے کی ہے ویسی ہی بات ہے یا کچھ اور ہے؟ ایک بات اور ہے پیر صاحب، وہ یہ ہے کہ وہ جو رہائشی وہ رہتے تھے ادھر جا کر، کبھی جب مہمان جاتا ہے تو وہ ایک دروازہ تھا جو یا ایک بازار کی طرف ایک دوسری طرف کھلتا تھا، وہ بیک دروازے سے آنا جانا ہوتا تھا، بلکہ دروازے کا بھی ذکر ہے، بس اتنا ذکر ہے کہ وہ ادھر جا کر رہتے تھے اپنے دوست کے پاس جب جاتے تھے لاہور سر پاس کے۔ سر جو ڈاکٹر مرزا یعقوب کی اگر کتاب پڑھیں گے وہاں پہ کوئی دروازے کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ صرف اتنا ہے کہ مرزا صاحب وہاں پہ فلاں مرید، وہاں پہ نام ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کے مکان واقع عابد بھائی وہ ہیرا منڈی روین تھا، رہتے وہ تھے۔ رائیں کر کے کوئی نام ہے، وہ جی رایان جی، کر کے کچھ اس ارائی طرح کر کے نام ہے۔ ارائی، ہاں 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 جی، جی، ارائیں کر ارائی کے اس طرح کا نام ارائی ہے وہ۔ ارائی کے مکان واقع ہیرا منڈی، وہاں پہ یہ ہاں جی الفاظ ہاں جی، لکھے ہوئے ہیں نہیں مٹھل نہیں لال وہ تو بات صاحب، ٹھیک ہے، وہاں پہ وہ تو کوئی بالکل بات دروازے ٹھیک دروازے کا ذکر نہیں ہے، اور ہے۔ نہ اور ہی جو تاریخ احمدیت کے اندر کسی دروازے کا ذکر ہے۔ ہاں جی، ٹھیک ہے اور جی، جو بات آپ کر اگر رہے ہیں نا اب عابد بھی، بھائی، جی جی وہ بات جی بالکل ٹھیک محمد ہے، منیر جو صاحب، بات جو آپ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بات ثابت ہے کہ جو پہلی ملاقات ہوئی ہے مرزا یعقوب کی مرزا صاحب کے ساتھ، جب ان کی عمر تھی، انہیں لکھی ہوئی ہے اپنی اس کے اندر 18 اور 19 سال ان کی عمر تھی، وہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، پہلی دفعہ جب ان کی اسٹوڈنٹ تھے ملاقات جی، ہوئی ہے
पहली दफा वहीं उनकी पे हुई मुलाकात है, हुई है मिर्जा साहब के साथ, वो हीरा मंडी के उसी घर में हुई है, और उस उसी घर टाइम में पर हुई है। हकीम नूरुद्दीन साहब उनके साथ थे, मिर्जा साहब के साथ। अच्छा जी सवाल ये है, बिल्कुल सवाल ये है जी। आबिद भाई, वो जो घर है किसी का घर था या वो हीरा मंडी ही में आता है, वो हीरा मंडी का जो सिलसिला है वही काम उसमें होते थे? सर इस बारे में अगर मैं कुछ भी कहूँगा तो वो झूठ होगा, साहब क्योंकि मैं मुझे आपको इस बारे बता में नहीं भेजता हूँ पता। आपके मोबाइल पे, वहाँ खिड़की का फाटक का जिक्र है बाकायदा, और पूरा वाक्य लिखा है। मैं आपको इधर आपको भेजता हूँ आपके मोबाइल पे, आप उसको लगा दें इधर। मैं भी आपको भेज देता हूँ। महबूब दीवान का मकान था, महबूब दीवान उस बंदे का नाम था जहाँ वो जाते थे। उसकी खिड़की जो उससे आमदरफ थी, एक बड़ा फाटक था जो बंद था, ये सारा लिखा है। मैं आपको भला भेजता हूँ, आप उसको नहीं लगा दें पीर साहब। नहीं, उसका खुलासा आपको क्या समझ में आया या क्या लिखा हुआ है? वो हीरा मंडी का हिस्सा पीर था? साहब मेन बात ये मकान है, हीरा मंडी में वाकया था, मकान हीरा मंडी में वाकया था, ये लिखा हुआ है। हाँ, पीर यानी साहब उस में इलाके में जिस तरह और भी मकान थे, इस तरह भी इसी का एक ही मकान था। पीर साहब मेन बात ये जी है जी कि बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते रिहायशी हैं, मकान है, आज भी आप रिहायशी ऐसा मकान है कह लोगों सकते के। हैं। क्या पीर कह साहब सकते हैं मेन भाईजान? पीर साहब मेन बात ये है, बात खत्म होती बात ये है कि हाँ जो आबिद भाई बात कर रहे हैं ना, कि ये बात हाँ कहीं से साबित नहीं है, ये कियास है कि वो पेंशन के पैसे लेके आगे हीरा मंडी जाते थे, ये कियास है। वैसे हाँ उनका जाना साबित है कि वो हीरा मंडी गए हैं, और मुझे भी ये मैं पढ़ आया हूँ, वो बात साबित है। लेकिन ये जो बात आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, स्पेसिफिक बात कि हाँ पेंशन के पैसे लेके वो भाग गए हैं हीरा मंडी, ये बात नहीं है साबित, ये कियास है। हाँ, वो तो ठीक है, ना वो तो सब हीरा सब मंडी रहना साबित करे, हीरा मंडी रहना गलत है या सही है। अगर किसी का मकान है, वो है कि एक है हीरा मंडी आप तवाइफों के पास जाते हैं, हाँ एक हीरा मंडी आप कहीं जाते हैं मेहमान रहते हैं, वो और बात है। आप हाँ बात को गुडमिट तो नहीं कर सकते ना। नहीं हाँ। मैं तो अच्छा वही बात आज ही कर रहा भी हूँ ना, एक अभी तो मिनट, एक पहली हीरा बात मंडी हुई वो है ना। जाते हैं, रहायश है, नहीं बंदे का मकान है, वो मिठल रहते लाल हैं। साहब, मिठल लाल साहब एक बात मुझे बताइएगा, मुझे मेरे बाप ने भी ये बात समझाई थी कि अगर कोई डाके डाल रहा है, चोरियां कर रहा है, आप उसके साथ घूमे फिरेंगे तो लोग आपको अच्छा समझेंगे। आप बेशक तहज्जुद की नमाज पढ़ते हो, नमाजी 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ते हो, कौन आपको अच्छा समझेगा? बताइए जरा। ठीक है, ये बात ठीक है। तो जो आज लोग जिनके मकान है हीरा मंडी में, वो सारे हाँ, कंजर हैं। अब ये सवाल वो कंजर टाइप जवाब दे है। दीजिए। आज भी लोगों के रिहायशी मकान है, वो नॉर्मल आम लोग हैं जिनके हीरा मंडी में मकान है। बादशाही मस्जिद की दीवार मिलती है हीरा मंडी के साथ। हाँ वो सब खराब हो गए। बादशाही मस्जिद की दीवार हीरा मंडी के साथ मिलती है। हाँ अब लोग नमाज दीवार जो है, दीवार की ईंटें पत्थर, नहीं मेरी बात सुनिएगा, वो जो हीरा मंडी की दीवार नहीं मिलती है, बीच में सड़क गुजरती है, आपने शायद देखा नहीं है पूरा किला। बादशाही मस्जिद में गया हूं, मेरे को दीवार है। बादशाही मस्जिद के चारों तरफ से वो गुजरती है, सड़क गुजरती है, उसके आगे हीरा मंडी शुरू होती है। तो क्या वो पत्थर और ईंटें जो लगी हुई हैं वहां पे, वो कोई गलत काम कर सकते हैं? वो ज़िना के मुर्तकिब हो सकते हैं, वो कोई चोरी कर सकते हैं, वो कोई गलत काम कर सकते हैं? इंसान कर सकता है, इल्जाम नहीं लगा रहे ना, हम तो इल्जाम नहीं लगा इंसान रहे। कर सकता है। देखें आबिद भाई, नमाज पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद, जी जी तो वो उस मस्जिद में जो साथ हीरा मंडी है वहाँ पे इसका मतलब। आबिद भाई, आपने जो सवाल किया जी। हमने बड़े ही अच्छे अंदाज में और साफ शफाफ लफ्ज़ों में जवाब दिया। आपने ये फरमाया कि आपके वालिद मुहतरम ने ये मिसाल दिया हुआ है, आप चोरों के साथ बैठेंगे, शराबियों के साथ बैठेंगे, बदकारों के साथ बैठेंगे तो बदनाम हो जाएंगे। ये बात दुरुस्त है, दुरुस्त है। हमने कहा कि बात सही है, उन्होंने सही की है। अब मेरा सवाल ये है, किसी का घर हीरा मंडी में हो और उस घर में घर हो, हीरा मंडी का हिस्सा ना हो, उसी इलाके में हो, साथ ही हो, करीब ही हो, आमने सामने हो, खिड़की मिलते हो, करें तो इस तरह से हैं, क्या वो घर वाले भी उसी में आएंगे कि ये अब जो है बदनाम बदकारी कर रहे हैं और वहाँ जो है मेहमान आते जाते रहे? पीर साहब पहली बात तो ये है, एक इज्जतदार बंदा हीरा मंडी में घर लेगा भी नहीं। यानी जो अभी हैं वो सब बेइज्जत हैं। कोई सर मैं इज्जतदार नहीं लेगा। आपको बात अच्छी है। नहीं, एक मिनट मैं आपको ये बता दूं कि ज़ियाउल हक के दौर में हीरा मंडी में अब जो काम पहले होता था, जैसे हीरा मंडी पहले होती थी, ज़ियाउल हक ने वहाँ पे ऑपरेशन करवाया था और सबको निकाल दिया था वहाँ से।
हीरा तो वो मंडी तो से। कादियानी था ना, उसकी बात क्यों कर रहे हैं ठीक है। फिर? कादियानी को मिसाल दे रहे हैं। नहीं जी। था, कल्याणी नहीं था, खालिद था। जियाउल कादियानी हक, नहीं था। हाँ, जियाउल हक जी, जियाउल हक कादियानी नहीं था। माइल हुआ था लेकिन बाद में वो उसने बैत वगैरह नहीं की थी, नहीं, वो बैत उधर वगैरह बात नहीं चल की रही थी, थी। माइल हुआ था। जहाँ लोग साबित करके गए जियाउल होगा। हक, हाँ। जियाउल हक कादियानी नहीं थे। भाईजान यहाँ गुफ्तगू हुई है, लोगों ने साबित किया कि वो कादियानी थे। वल्लाहु आलम, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है। वो बहुत बड़े मुजाहिद थे जैसे खत्म जैसे नबूवत के बाद में। एक मिनट मलक इमरान भाई, जैसे जी, जैसे कहा जाता है कि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह जो है वो भी कादियानी थे, हाँ, हालांकि कहीं पे भी ऐसा सबूत नहीं मिलता कि उन्होंने बैत की हो या उन्होंने कादियानियत कबूल की हो और बाद में तायब हुए हो, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिलती है हाँ, नहीं, इलामा के इकबाल बारे में, रहमतुल्लाह की। जी अल्लामा इकबाल के बारे जी में जो बात है वो ये है कि वो थे छोटे, वो छोटे थे, उनके वालिद ने बैत की हुई थी, वालिद के साथ आते जाते रहे हैं वहाँ पर, समझ रहे हैं? नहीं, अब वो मिर्ज़ा साहब को सिर्फ एक दफ़ा मिले हैं और वो भी सियालकोट के अंदर, जब ये गए थे वहाँ पे लेक्चर देने के लिए, उस वक़्त इलामा इकबाल रहमतुल्लाह जो है वो इनसे मिले थे एक बार सिर्फ। मैंने जो बात सुनी है मोहतरम आमिर नज़ीर साहब से, आमिर नज़ीर साहब से ख़ास, वो ये जी है कि उनके वालिद ने बैत की हुई थी, ये थे छोटे, अपने वालिद के साथ आते जाते रहे हैं वहाँ, समझ रहे हैं? और ये भी कहा है कि छोटा था वो आप नहीं कह सकते कि कादियानी थी, जो भी था आप कह भी दें, लेकिन जब बड़ा हुआ उन्होंने, वो कादियानी नहीं था, उन्होंने इस चीज़ का इनकार कर दिया, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हो गए। ये आमिर नज़ीर साहब के गुफ्तगू का खुलासा है, क्योंकि मैंने ये कहीं मरतबा जी सुना है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर वो अहमदी कहते हैं ना कि वो कादियानी था, तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई तहरीर मैंने नहीं देखी इस मसले पे, ज़ुबानी कलामी बात। तो जी हकीकत क्या है? तो अच्छा आते हैं अपनी असल बात की तरफ, वो छोड़ जी दीजिए। इसी तरह ये ही बात ज़ियाउल भी हक जो है, जी, ज़ियाउल हक जो है ये भी माइल ज़रूर हुए थे कादियानियत की तरफ, लेकिन ना इन्होंने बैत की और ना ही इन्होंने उसको कबूल किया, बल्कि बाद में तो बहुत ज़्यादा मुखालफ हो गए थे ये कादियानियत के। तो इनके खिलाफ ये जो अस्सलामुअलैकुम शायर वरहमतुल्लाहि इस्लाम के वबरकातुहू। बारे में खामोश आर्डिनेंस खामोश आया खामोश, है, मेरा टाइम का इंतजार कीजिए। जो वालेकुम सलाम। आर्डिनेंस आया हुआ है वो जनरल ज़ियाउल हक ही लेके आया हुआ था कि ये शायर इस्लाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। नहीं, जी ये तो मैंने सुना है, 2-3 मरतबा सुना है ये बात ज़ियाउल हक के बारे में। मैं हैरान रह गया, मैंने पूछा भी ये कैसे मुमकिन है? कहता नहीं वो कादियानी थे। मैं हैरान हो गया कि ये किस तरह की बात है। हम बहुत सारे लोगों ने ये कहा है, लेकिन यह है झूठ है, वो मुसलमान था। अब झूठ है सच है, वल्लाहु आलम। अच्छा, सर मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक बात कर रहा हूँ, जो मुझे मालूम है मैं वो बात करूँगा, वो जे धमाका नहीं करना थे बाकी नहीं कर सकता सर। ये आपसी बात से मुतफिक हूँ, आप सही बात कर रहे हैं, मैंने भी यही सुना है, पढ़ा भी है। जी, तो जनरल ज़ियाउल हक ने अपने दौर के अंदर इस हीरा मंडी को ख़त्म कर दिया था, ख़त्म करके वहाँ पे फिर लोगों ने रिहाइशें रख ली थी हीरा मंडी में। आज भी फिर जनरल ज़ियाउल हक के बाद फिर कुछ फैमिलीज जो ये गंदा काम करती थी हीरा मंडी में, वो फिर लौट आई और अब रिहायशी भी रह रहे हैं, वो भी रह रहे हैं। मैं इसका आंखों देखा हाल ये बताता हूँ कि जब मैं फैसलाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हमारा ट्रिप गया था लाहौर में शाही किला देखने के लिए ना, जो मुतालियाती टूर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उसके लिए हम लोग गए थे। तो दाता दरबार से चलते हुए जब हम लोग बादशाही मस्जिद में गए तो मुझे एक दोस्त कहता है कि तुम कभी हीरा मंडी में गए हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया। वो कहता देख लो मस्जिद के अंदर खड़े हो, झूठ मत बोलना। मैंने कहा नहीं, मैं तो लाहौर पहली दफ़ा आया हूँ, आज पहली दफ़ा। तो वो कहता है अभी तो तुम हीरा मंडी से गुज़र के आए हो। तो मैंने कहा कौन सी हीरा मंडी? बोलता है ये जो रोड से हम लोग गुज़र के आए हैं ये हीरा मंडी का रोड है, ये पूरा मोहल्ला हीरा मंडी का है, तुमने देखा नहीं है?
मैंने कहा रोड तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे क्या पता ये हीरा मंडी वाला रोड है, हम लोग दूसरे रास्ते से आ जाते। तो वो कहता है हम चूँकि दाता दरबार से पैदल आए हैं इसलिए ये शॉर्टकट है, अगर दूसरी तरफ से आते तो वो थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता था, इसलिए। तो फिर मैंने शाही किले के वो उसके ऊपर खड़े होके, दीवार पे खड़े होके देखा था, तो वहाँ पे उस वक़्त भी यानी कि ये औरतें जो हैं वो बालकनियों की खड़ी हैं। मैंने खुद जो अपनी आंखों से देखा मैं वो बता रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने नसीब ही नहीं किया उधर जाना और तौबा भी की। जी फिल्मों की बहुत सारी हीरोइन है ना, वो कासा ही थी जी उसके बाद ना अल्लाह ताला ने नसीब किया और ना ही जाने की कोशिश की उस तरफ। हालांकि लाहौर में तो मैं बाद में बहुत दफ़ा गया हूँ, इतनी दफ़ा गया हूँ कोई हिसाब ही नहीं है। कंपनी में मैं काम करता था, अकाउंटेंट था, तो ज़्यादा परचेजिंग जो होती थी वो मैं खुद जाके लाहौर से करके लेके आता था, लेकिन कभी उस तरफ जाने का दिल तो क्या दिमाग भी नहीं माना कि उस तरफ जाना है या उस तरफ जाके देख ही आए होता क्या है। जी सर। भाई ग्लोबल साहब आए थे, फिर जो है वो दुम दबा के भागे। बात यह है, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, क्या जो घर वहाँ इर्द गिर्द हैं हीरा मंडी के, उनको भी आप कहेंगे कि ये हीरा मंडी में ये लोग, उनके पास मेहमान जाते हैं, शरीफ लोग भी जाते हैं, उलमा भी जाते हैं, उनके रिश्तेदार भी जाते हैं, तो क्या उन पे ये हम इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो हीरा मंडी जाया करते थे, बदकारी करते थे? जी आबिद भाई, मेरा इतना ही सवाल है। जी सर। अजीब बात है। फिर साहब छोड़ो, कोई जाए हीरा मंडी, जो कोई भाड़ में जाए, जहन्नुम में जाए, हमको से क्या। लेकिन हमारे भाई ग्लोबल छोड़ो, साहब ने 3 घंटे से एक ही बात पकड़ी आप लोगों ने। मेरा छोड़ो, उम्र है 57, वो कहता है मुझसे भी 10 साल बड़ा है। हाँ बच्चे हो ना आप, अभी तो बच्चे हैं वो आप। 67 का है, उसका दावा है 10-12 साल बड़ा है। तो इतने एक बुड्ढे के लिए उसको शर्म नहीं आता इस तरह की झूठ बोलेगा? हाँ भाई, यानी एक बुड्ढा दिन दहाड़े किसी पर झूठ बोले अच्छा लगता है? 57 का मैं हूं, अभी वो उसने ये कहा है कि मुझसे वो ये साहब खुदा के लिए रहने दे, आप अल्लाह के लिए रहने दे, अल्लाह के लिए रहने दे। ये एस अहमद नीचे आया हुआ है, जरा इनको तो ऊपर लीजिएगा। एस अहमद, इस बात को रहने दे, आप कोई और बात करें, थोड़ी सी मिर्जा की मंजी ठोके। चलें यहाँ आ जाते हैं पता नहीं किधर किधर से लोग। एस अहमद को ऊपर लीजिएगा। एस अहमद, नो प्रॉब्लम। उनको कहें कॉल डाले, मैं ले लेता हूँ। ले लीजिए भाई, जिसको चाहे ले लीजिए। आबिद भाई उनको कहें कॉल डाले। हाँ एस अहमद साहब जरा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, फिर बात कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ। वो आपके न कज़ाब था, उसकी हर बात कज़ाबून दजालूना, हर चीज उसकी, हर चीज झूठी है। ओ मलक साहब एक मिनट, कोई ब्रेक पे पैर रख लो यार। गुण के हो गया यार, 2-3 घंटे हो गए। आबिद भाई मैंने डाली है उसे कॉल। वो हीरा मंडी जाता था, नहीं जाता था, जाए ना जाए भाई, हमें क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराफिक भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप सुनाम अलैकुम भाई। अल्लाह का करम, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के साथ। शेख साहब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो रहा है? खुश। उससे दूसरी ब्रॉड पे चल रहा है जिक्र हम इस्मु अहमद में, बाद इस्मु अहमद, अहमद से मिर्जा किस साहब। ब्रॉड पे? पता नहीं, अभी मैं वहाँ से आया। तो हजरत ब्रॉड कौन सी थी? ब्रॉड इसको भी थोड़ा दे। पता नहीं, हुसैनी की होगी। नहीं हुसैनी की नहीं, कोई और है। कौन बैठा है उधर? हाँ वो एक ब्रॉड लगी है, उसका नाम है सैयद। हाँ यही एग्जैक्टली। वहाँ पर बैठा है डॉक्टर रशीद, सुभान अल्लाह, हाँ कमरात इस्लाम, उस्मान भट्ट, इब्ने आदम, ये तो सारे मिर्जा ही बैठे हैं। मुझे तो ऊपर नहीं लिया उन्होंने, तो मैं फिर पूछता कि फिर
مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، تو پھر یہاں پہ احمد کون؟ یہ کہتے نہیں، غلام احمد، غلام احمد. تو پھر اگر من بعد اسمہ احمد سے مرزا صاحب مراد احمد ہے، پھر غلام وہ کس کے ہوئے؟ یہ کوشچن بنتا ہے نا. پوری دنیا کے غلام ہیں. شیخ جی صاحب ایک عبد بات الرفیق ادھر بڑی بھائی، چل رہی ہے. مرزا صاحب نے خود اس آیت کا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی ہوئی ہے اس آیت سے. جی یہ عابد بھائی اس نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس آیت کی. اگر اس آیت سے مراد مرزا غلام احمد تھا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وفات نہ ہوئی ان کی. یہ عابد بھائی یہ اگر بفرض مال اس چیز کو مان بھی لے کہ اس آیت سے مراد احمد نعوذ باللہ مرزا غلام قادیانی ہے، تو پھر مرزا صاحب سے پہلے ان کے لیے لازم ہو جائے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ مانے. صحیح بات ہے. یہ عابد بھائی یہ اس نے وہ اس تفسیر میں لکھا ہوا ہے اس آیت کی مرزا غلام احمد نے؟ نہیں، آئینہ کمالات اسلام میں جلد 5 میں، اچھا روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام میں اس نے اس آیت کا مصداق، میں ابھی صفحہ بھی بتا دیتا ہوں، اس آیت کا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرا کر اور اس سے وفات مسیح ثابت کی ہوئی ہے. جلد 5 صفحہ نمبر 42 ہے. 42 اوکے ہو گیا. آپ کر لیں عابد بھائی، آپ کریں، اب وہ پیر صاحب سے بات کر لیں جو کر رہے تھے. جی نہیں، گلوبل صاحب کو بات کرنے دیجئے. جی گلوبل صاحب، ابھی صرف 2-3 منٹ کے لیے آپ بات جاری رکھیں. میں اپنی ڈیسک پہ جا کے پھر آپ سے ابھی بات کرتا ہوں. صرف 2-3 منٹ آپ جاری رکھیں اور میں پوری بات کا نتارہ ابھی کرتا ہوں. نہیں، میں آپ کو فضول بات کرنے نہیں دوں گا. جتنی بات آپ سے مطالبہ کی جا رہی ہے وہ بات کیجیے. آئے گے خام خواہ کی بات کریں گے، وہ تو بہت سن لیا. جی باقی جو یہ اسمہ احمد والی جو آیت ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6 ابو رفیع بھائی نے بتائی، مرزا صاحب نے اگر کہیں پہ لکھا بھی ہے اس آیت کو اپنا مصداق قرار دیا ہے، لیکن اول مصداق انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے اور دوسرا مصداق اپنے آپ کو قرار دیا ہے. مرزا صاحب نے کہیں پہ بھی اپنی پوری کتب کے اندر اکیلا اپنے آپ کو اس آیت کا مصداق قرار نہیں دیا. یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب تھے جنہوں نے بعد میں اس آیت کا مصداق صرف اور صرف مرزا صاحب کو قرار دیا، نہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی دلیلیں بھی دی ہوئی ہیں اور سب کی سب بے ڈھنگی اور بونڈی دلیلیں ہیں ان کی. نہیں عابد بھائی، مرزا صاحب نے اپنے کو جمالی اور جلالی کا فلسفہ دیکھا ہے نا. پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمالی احمد تھے، پھر میں جلالی رنگ میں اسی کے تحت جی بالکل اسی کے تحت، یعنی کہ پہلا مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس کے بعد میں اس کا مصداق ہوں. ایسے کر کے انہوں نے جہاں کہیں پہ بھی تحریر کیا ایسے کیا ہے. لیکن عابد بھائی میں نے نا 3-4 جگہوں پہ چیک کیا ہے جہاں پر انہوں نے من بعد اسمہ احمد کیا ہوا ہے، وہاں پر تو انہوں نے 3-4 جگہوں پہ لکھا ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام تھے وہ محمد اور احمد دونوں تھے. تو یہ بات تو 4 جگہوں پہ نہیں، صرف ان کی تحریر میں یہی جو آئینہ کمالات اسلام ہے، صرف واحد یہ تحریر ہے جس میں انہوں نے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مصداق قرار دیا ہوا ہے. باقی جو ملفوظات، دعوت الوساوس اور دوسری جتنی بھی کتب کے اندر انہوں نے یہاں پہ کیا ہے تو وہاں پہ اپنے آپ کو ساتھ جوڑا ہے انہوں نے. آپ غور سے پڑھیے گا، اس کے نیچے بھی تھوڑا پڑھے نا، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. چلے میں پھر دوبارہ ایک دفعہ پڑھیے گا
आगे जाके पढ़िएगा तो उन्होंने अपने आप को भी बीच में घुसेड़ने की कोशिश की हुई है वहाँ पे। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे अक्सर लोग यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जाती नाम था वो अहमद नहीं था, लेकिन मिर्जा साहब तो ये मानते हैं कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जाती नाम है वो अहमद भी था। मैं ये कह रहा हूँ जी, वो ये भी मानते हैं और अहादीस जो हैं वो भी मिलती हैं कि हाँ जी, आपकी आवाज चली गई है। ठीक है कि ताला अन्हु से रवायत मंसूब है, वो रावी हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद था। ठीक है जी। एक दो और रवायात भी मिलती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी रवायात मिलती हैं, हदीसें मिलती हैं कि मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं आकिब हूँ, मैं हाशिर हूँ। ठीक है, तो ये वाली आयत भी मिलती है, हदीसें मिलती हैं। तो हदीसें तो काफ़ी सारी मिलती हैं इस बारे में। वो हमें तो आबिद भाई वो इस पे ये वो वाली हदीस भी मुझे मिल गई थी जिसके अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि मैं इब्राहीम की दुआ हूँ, मैं ईसा की बशारत हूँ और मैं अपनी माँ का वो ख्वाब हूँ। तो वो तो हदीस हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफ़ी सारी इस पे मिल जाती हैं, लेकिन बात वही है कि वो अगर इनके घर से बात मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छी हो जाती है कि इनको समझ आने में थोड़ा जल्दी लग जाती है, टाइम इनको कम लगता है। नहीं, ये जो बशीरुद्दीन महमूद साहब हैं, इन्होंने किस तरह दर्जल किया, इन्होंने इस तरह दर्जल किया कि वो कहते हैं कि मोहम्मद के अलावा जितने भी नाम हज़रत वसल्लम के हैं वो सिफाती हैं। वो दलील भी वहाँ पे देते हैं कि सिफाती नाम है, हालांकि अहमद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिफाती नाम नहीं था, उनका ज़ाती नाम था। ऐसे ही ठीक है जी। वो इसको बुनियाद बना के वो कहते हैं कि ये तो सिफाती नाम था हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन जो कुरान पाक में अहमद आया है वो तो नाम आया है, वो सिफ्त नहीं है, वो नाम है, इसम है। तो इसलिए वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को उसका मस्ताक करार देते हैं। जी पीर साहब आप मौजूद हैं? जी जी मैं हूँ भाई। पीर साहब एक मिनट दें खान साहब, एक मिनट दें। पीर साहब अगर आप मौजूद हैं तो इस तरह है कि नीचे एक तारिक साहब ने कॉल डाली हुई है और एक ग्लोबल भाई ने भी ऊपर आना है, तो मुझे बताएं कि सीटें कौन दो चाहिए। मैं नीचे जाता हूँ। मैं एक बात करने कि अगर पीर साहब का मसला हल नहीं हुआ ग्लोबल के साथ तो उनको ऊपर ले लें और उनके साथ मसला हल करें। ये वो खिलाफत ग्रुप की तरह काम ना करें कि एक तरफा मुनाजरा ना करें, उनको नीचे रख के और ऊपर आप लोग बातें ना करें ना। अगर मसला हल करना है तो उनको ऊपर ले। भाईजान आपकी ये जो दानिशमंदी की बात है हम इसको नहीं मानते। हमने उनको कई मरतबा चांस दिया, वो आएंगे खामखा की बात करेंगे, हम तो खामखा की बात कब तक उसकी सुने। चलिए ठीक है। अच्छा फिर बात नहीं होती तो चलिए सही है, फिर बात जब नहीं होती तो ठीक है यार, आ जाओ अली आप लोग सब, फिर आ जाओ। नहीं उठाते तो क्या जरूरत है। ओके जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए, चले जाइए। ओके जी। हमने कब कहा आपको भाईजान कि आपको खामखा की बात हम करने दें। ग्लोबल साहब को उठाइए कि वो आएंगे खामखा की बक 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 करेंगे, ऐसा तो है नहीं भाई। बात यह है उस झूठ को साबित करो, सब मिलके, उसके दोस्त, उसके गमखार, सब मिलके उस झूठ को साबित करो कि मिर्ज़ा जो है वहाँ जाया करते थे, क्या नाम है, हीरा मंदिर, किसी के घर में जाकर रहते थे। बहुत शोर आ रहा है यार, किसका बहुत शोर आ रहा है प्लीज। किसी घर में जाते थे, वहाँ पर अभी भी घर हैं, तो वो जो है वो जना माशाल्लाह और पता नहीं क्या क्या आप समझे। तो ये आप लोगों के दिमाग की जो है वो शैतान की पट्टियाँ हैं जो पड़ी हुई हैं। फिर सब इस बात को आबिद भाई क्लियर कर देंगे, अभी आबिद भाई को दें, आबिद भाई करें आप इस पे बात को साफ शफाफ रखें। अच्छा पीर साहब मुझे सिर्फ दो मिनट या 1 मिनट चाहिए, सिर्फ 2 मिनट नहीं 3 मिनट आपकी बात कीजिए। मैं सुबह से ही है ना ये टुक टुक टक टक सुन रहा हूँ, कभी कोई आ रहा है दलील दे रहा है, कभी कोई आ रहा है दलील दे रहा है। ना इस बात का मिर्ज़ा की नबूवत से कोई ताल्लुक है, ना उसके दावे से कोई ताल्लुक है। ये उसके किरदार की बातें हैं जो इधर उधर से पकड़ी हुई बातें हैं सारी। इस पे इतनी बहस क्यों हो रही है, इस पे क्यों मुनाजरा होना है इस बात के ऊपर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप लोग तबलीग कर रहे हो, ये आप दावत दे रहे हो अहमदियों को आपस में, जो आप इतनी ज़ुबान सख्त इस्तेमाल कर रहे हो, ये क्यों सी दावत है?
اس دین کی طرف بلانا چاہتے ہو جو آپ لوگ پریزنٹ کر رہے ہو یہاں پہ. کبھی ایک اوپر چڑھ رہا ہے وہ بکواس کر رہا ہے, دوسرا آ رہا ہے, تیسرا آ رہا ہے. گروپ بنائے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے, گروپ بنا کے آپ لوگ آتے ہو, باتیں کرتے ہو آ کے, پھر قرآن کی دلیل دیتے ہو, قرآن کی وہ وہاں سے دلیل دیتے ہو, پھر آپ کی دلیل رد کی جاتی ہے, پھر کہتے ہو یہ قرآن پہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ آپ لوگوں کو گندا کری. آپ اپنی براڈیں لگاتے ہو نا, جاؤ اپنی براڈیں لگاؤ, جو کام آپ کر رہے ہو کرو, رد قادیانیت کرو, دعوت دو, تبلیغ کرو, جاؤ اپنی براڈوں پہ کرو. دوسرے بندے کو آگے پابند کیوں کرتے ہو؟ اپنا یہ رویہ چھوڑ دو مسلمانوں, پھر مسلمانوں کو نام بدنام ہوتا ہے ہر جگہ پہ. یہ آپ کوئی دعوت دے رہے ہیں احمدیوں کو, کوئی دعوت نہیں ہے یہ آپ کی, یہ آپ کی ضد ہے, یہ آپ کا شوق ہے, یہ آپ کی زبان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, خارش ہے جو مٹھی کرتے ہو آپ لوگ کر کے. میں سمجھو کہ میں نے کام کر دیا ہے. جو لوگ خالصتاً کام کر رہے ہیں نا ان کے رزلٹ بھی آ رہے ہیں, ان کی وجہ سے لوگ مسلمان بھی ہو رہے ہیں. لیکن اس طریقے سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جیسے لوگ آپ لوگ کر رہے ہیں. جزاک اللہ. عثمان صاحب آپ نے جو جی پہلے میں علی بھائی میں بات کر لوں. اگر میں بات کر لوں جی آپ کریں. جی ٹھیک ہے. پہلی بات ہے کہ عثمان صاحب یہاں پہ کوئی بھی گروپ بنا کے نہیں آ رہا. اگر کوئی آ رہا ہے تو اس کو ثابت کرے. ایسے ہی کسی کے اوپر منہ اٹھا کے الزام نہیں لگا دیتے, جو منہ میں آئے وہ بات کر دی. ایسی بات نہیں ہے. جو ہم لوگ, میں یہاں پہ آیا ہوں تو جو بات صحیح ہے وہی بیان کی ہے, کوئی اپنی طرف سے حاشیہ رائے نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اور دوسری جو آپ نے کہا ہے کہ اس سے جو ہے وہ آپ تبلیغ کر رہے ہیں, ہم کوئی تبلیغ نہیں کر رہے یہاں پہ بیٹھ کے. ہم ایک بات ہے اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ کیا یہ ہے یا نہیں ہے. اور دوسری بات یہ رہی کہ جی آپ نے کہا کہ آپ اپنی براڈوں پہ یہ یا وہ بتائیں کون کون سی براڈیں, جو کتنی براڈیں ہیں نام لیں ذرا یہاں پہ, اور ان کے ثبوت دیں جو گالیاں نکالتے ہیں. جو گالیاں نکالتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نہیں نکالتے گالی کسی کو. اچھا تو ساری سب کو بیچ میں نہیں رگڑے. عابد بھائی میرے ایک منٹ مطلب صاحب میری باری ہے, عابد بھائی کو بات کرنے دیں. ایک منٹ میں نے ہر ایک کو عابد بھائی بیچ میں ایک نہیں مسئلہ رگڑ دیا جی کرے. ملک صاحب نہ بولیں آپ, عابد بھائی کی باری ہے اور اس کے بعد علی بھائی نے بولنا ہے, پھر آپ بول لیجئے گا. جی ہم لوگ اگر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو ہم پیش کرتے ہیں نا. محترم اسکانی صاحب اس کو ہمیں سمجھاتے ہیں, اگر ہم نے کوئی غلط استدلال لیا ہوا ہے وہ ٹھیک کروا دیتے ہیں, تو اس میں کون سی غلط بات ہے؟ کیا ہمیں قرآن نہیں سیکھنا چاہیے؟ اگر کوئی غلط ہے, وہ غلط استدلال لے رہا ہے, ایسا جا کے آپ قادیانیوں کی براڈوں پہ بھی بولتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ شاطمیت کر رہے ہو, قرآن کو الٹا مانوی لفظی تعریف کر کے بیان کر رہے ہو, من گھڑت تعویلیں کر رہے ہو, تو ایسے کون قادیانی ہوگا؟ ان کو بھی جا کے بولا کرے نا. کیوں نہیں اچھا بولتے؟ بھائی, وہاں پہ کھگی بن جاتی ہے آپ کی. بھائی عابد بھائی دیکھیں, عابد بھائی آپ نے ایک بات کی تھی یہاں قرآن مجید پہ, واقعتاً اس طرح کی باتیں مشہور تو ہیں, لیکن ان سے قرآن مجید پاک ہے ان باتوں سے. اور ان باتوں کو محققین اور محدثین اور حفاظ اور مفسرین نے رد کیا. جو ابھی آپ نے بات کی نا آج کہ زنیم, اور یہی حوالے دیتے ہیں قادیانی کہ تم لوگ کہتے ہو مرزا نے گالی دی, مرزا نے گالی دی, وہ کہتے ہیں قرآن میں بھی تو گالی ہے. اس وقت پھر آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ پسپائی اختیار کر لیتے ہو, جبکہ اپنی باری ہوتی ہے. آپ نے خود پیش کی زنیم, حالانکہ زنیم کا لفظ زنیم بالکل یہ ایسا نہیں ہے کہ ولد الحرام نہیں ہے. مفسرین نے اس بات کو رد کیا. ایک کہانی جو ہے گڑی ہوئے بے سند بے بنیاد کہ اس طرح سے وہ بکریاں چرا رہے تھے, کوئی جو ہے وہ اس کے شوہر سے بچے نہیں ہوتے تھے, بڑے مالدار تھے, اور پھر اس نے اس چرواہے سے جو ہے وہ بدکاری کی اور یہ بندہ پیدا ہوا. بھائی اس قصے کو مفسرین نے محدثین نے موضوع من گڑت قرار دیا ہے. کیا ان کو ہمدردی تھی اس سے؟ نہیں بھائی, کیسا ہے ہی نہیں. یہ خامخواہ کی باتیں جو مشہور ہیں ہم لوگ جب کرتے ہیں نا بھائی, یہی تو قرآن کے خلاف ہے یہ بات.
हम लोग को तहकीक कर लेनी चाहिए। लफ्ज़ ज़नीम वलदुज़्ज़िना नहीं है, कुरान मजीद ने किसी को वलदुज़्ज़िना नहीं कहा। आपने खुद पेश की इस बात को, और हमारे कई भाई पेश करते हैं, लेकिन जब उनको कहा जाता है, और यही बात जो हमने की है, हमारे भाई ने की है ना, हमारे किसी मुसलमान ने की है, यही बात जब कादियानी करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये देखो कुरान की गुस्ताखी की। भाई अभी तो हम लोग तो खुद करते हैं इस बात को। ना नबी अलैहिस्सलाम लैसल मुमिन बित्ता, नबी ने मोमिन के बारे में कहा, ना नबी ने किसी को गाली दी, ना कुरान मजीद में कोई गाली है। वलदुज़्ज़नीम ऐसा है नहीं भाईजान। एक से मैं सुन रहा था, वो कहता है जो नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करेगा वो कुरान मजीद में मौजूद है कि वो वलदुज़्ज़ना है। देख लो, यानी अल्लाह ने उसको गाली दी है। तो मेरे भाई इस तरह की बातें हम लोग करते हैं अपने जोश खिताबत में, जो गलत होती है। कुरान मजीद में वलदुज़्ज़ना किसी को नहीं कहा, ज़नीम का मतलब किसी मुफस्सिर ने ये नहीं कहा। हाँ, मशहूर की गई है, तराजम में बहुत सारी बातें लिख दी गई हैं। एक किस्सा जो है बेबुनियाद, जिसकी कोई सनद नहीं, मौजू मनगढ़ंत, उसको जो है मशहूर किया हुआ है, गुलू करके, नादानी करके। समझ रहे भाईजान? इसलिए तो मैं आपसे बार बार पूछ रहा था, लेकिन आपने उस बात को छोड़ दिया। समझ रहे भाईजान? और दूसरी बात, कादियानी जो करते हैं, कादियानी बदकारी करें हम भी करें क्योंकि कादियानी करते हैं, कादियानी जो है गुस्ताखी करें क्योंकि हम भी करें क्योंकि वो करते हैं, वो गालियां देते हैं हम भी करें कि वो करते हैं। भाई हमें नहीं कर लेना चाहिए ना भाई। ये तो दलील नहीं होती ना कि वो करते हैं इसलिए हम करते हैं। भाई हम अपनों को ही मना कर सकते हैं, अपनों को ही जो है डरा सकते हैं कि अल्लाह से डरिए, इस तरह की हरकत मत कीजिए। किसी और को क्या आप कहेंगे? भाई मेरी और आपकी बात कादियानी क्या मानेगा? वो नहीं मानेगा। लेकिन आपकी बात मैं तो मानूंगा। आपको मैं कहूंगा जो है गाली गलौज जो है वो अकबरुल कबायर है। आपको तो मैं ये कह सकता हूं ना कि देखो भाई झूठ मत बोलिए, झूठ बोलेंगे आप बदनाम होंगे, दागदार हो जाएंगे। वला तलमिज़ू अनफुसकुम, इसका क्या मतलब है? अपने आप को कोई जो है वो ऐबदार करता है नहीं, लेकिन आप एक मुसलमान ऐबदार है तो कहते ये मुसलमान है। समझ रहे? गोया कि अपने आप को ही मैं कह रहा हूँ। ये है वो असल बात। तो ये तो सही मसला पूछना है आपसे, क्योंकि जी मलक साहब एक मिनट, मलक साहब एक मिनट भाई मेरा जी, दोस्त वेटिंग में है, मैंने मेरा फिर दोस्त वेटिंग नहीं, में है, मैंने सो रोटी बनानी है। मैं सिर्फ एक मिनट लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं। मोहतरम अस्कानी साहब, मैंने ज़नीम का मानी बिल्कुल वल्दुल हराम नहीं किया। मैंने वहाँ पे इसका जो इस्तदलाल लिया था वो ये लिया था कि जो बंदा असल में ये कहते हैं बेअसल को, जैसे हम लोग कहते हैं कि ये घोड़ा जी बेअसल कौन है? मैंने यही तो पूछा था बेअसल मतलब जी। आगे अगली आयत पढ़े तो उसमें लिखा हुआ है कि असल में वो बेअसल है। ठीक है जी, तो बेअसल वो है, नहीं लिखा हुआ, बेअसल वो जी। आबिद भाई नहीं लिखा हुआ है। अली साहब वो आयत पढ़िएगा जो पहले आपने पढ़ी थी। अली साहब ज़नीम का तर्जुमा कीजिए ना पहले, बार-बार। जी मेरा शोर है, ज़रा वो पढ़िएगा। मेरा ख्याल है पीर साहब से तर्जुमा करवा लेते हैं कि ज़नीम का तर्जुमा क्या बनता है। मुझसे क्यों करवाते हो? तो पीर साहब आपसे हम सीखेंगे नहीं, आपसे हम सीखेंगे नहीं पीर साहब। कम आ रही है, माइक के पास आके बात करें। आपके पास हाजिर होते हैं, आपके पास अगर हाजिर होते हैं तो कुछ आप सिखाएंगे नहीं। आप फरमा देना ज़नीम का मतलब क्या है। हमारे यहाँ तो फिर वही सारे तराजम लगेंगे जो पहले से किए हुए हैं, आप उन सबको रद्द फरमा रहे हैं, तो आप सिखा दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा ना। भाई इस्तदलाल मेरे भाई ने की है ना, आबिद साहब ने, तो मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि ज़मीन का क्या तर्जुमा है। क्या आप मेरे सामने एक ये तर्जुमा खुला हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है कि जो बदमिजाज दुरुस्त खो है, मजीद बरा बद असल भी है। अब ये हमारे सामने ये तराजम आते हैं, आप इन सबको रद्द फरमाते हैं, तो आप भी है, मजीद बरा बद असल है पीर साहब जी। मजीद बरा बद असल है। किसी जगह कौन से तर्जुमे के, अरबी के कौन से लफ्ज़ के तर्जुमे हैं? हुजूर यही आपको अर्ज किया ना कि आप तर्जुमा फरमा दें, हम सीख लेंगे, आप सिखा दें। अच्छा ठीक है जी। आबिद भाई बताइए ज़नीम का क्या मतलब है? और आपने ये कहा कि आगे लिखा हुआ कि बेनस्ल है, वो कौन सी आयत है?
ज़रा पढ़िए। बेनस्ल नहीं, बेअसल। बेअसल, हाँ बेअसल यस, वो जी। कौन सी आयत है? बेअसल। अभी ये भाई ने तर्जुमा आपको सुनाया ना, जो लिखा हुआ है। भाईजान वो अरबी के तो अल्फाज में ऐसा है नहीं कि बेअसल है, वो कौन से अल्फाज हैं अरबी के भाईजान, मैं ये पूछ रहा हूँ। आयत कौन सी है अब्दुल बासा? आयत कौन है, किस सूरत में है? जी जी, कौन सी आयत है, किस सूरत में है? अच्छा मुझे एक सूरह सवाल कलम, पूछने थे पीर आयत साहब। नंबर 13 और 14 एक पढ़े। मिनट यार, किस्सा खत्म हो जाए यार प्लीज। यार हो वैसी मैंने एक सवाल में शरई 6 घंटे हो गए, नहीं होता पे ताई तक खत्म हो लगा दोस्त ने मुझे फोन किया है ना पीर साहब, अगर एक आदमी उम्रे पर जाता है तो क्या सर मुंडवाना उसके लिए जरूरी है? नहीं जरूरी भाईजान, नहीं जरूरी, सर बनवाना जरूरी है, नहीं बात ज़रूरी है, वाजिब है कि या बाल कटाएं या सर मुड़वाएं, दो में से एक। हाँ, बाल या कटवा ले या सर बनवा ले, दोनों में से एक कर ले। या छोटा सा कोई बच्चा है 10-12 साल का, उसको भी टक लगा देना यार, उसको भी टक लगा दे 4-5। ठीक हो गया, ठीक हो, ओके। बस एक गल मैं पूछनी सी जी, बालों को तराशना वो भी साबित है और अफजल है, लेकिन अगर कोई बाल नहीं तराशता, उनको छोटा कर देता है बालों को, ये भी साबित है सहाबा से, और ये भी ठीक है। ठीक हो गया, बस यही बात पूछनी थी मैंने पीर साहब। जी जी जी, आबिद भाई जी। कहाँ है भाईजान वो आयात के वो बेनस्ल है या बदनस्ल है, जो भी आपने कहा भाई, इतना तो आप तो जानते हैं ना। मैं आपको बता तो रहा हूँ, सूरह कलम की आयत नंबर 13 और 14। हाँ, अभी एक तर्जुमा भी वो भाई ने पढ़ के सुनाया आपको। अच्छा एक मिनट देखें भाई, क्या लिखा हुआ है? 13 में ये लिखा हुआ है उतुल्लिन बअद ज़ालिका ज़नीन। 14 में ये लिखा हुआ है अनकाना ज़ा मालिन व बनीन। आगे लिखा हुआ है इदा तुतला अलैहि आयातुना काला असातीरुल अव्वलीन। बेनस्ल है या बदनस्ल है, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ आयतों में। ऊपर ये लिखा हुआ है हम्माज़िम मश्शाइम बेनमीम, वो हम्माज था, मश्शा था, इसी तरह नमीम, इसी तरह मन्नाइन लिल खैर मुअतदिन असीम। माजरत चाहता हूँ पीर साहब, 1 मिनट की माजरत दे दीजिए, इजाजत दे दीजिए, मैं रिस्पेक्ट से बात ठीक है, बात कीजिए, बात कीजिए। पीर साहब देखें, आप ज़नीम का मानी पूछ रहे हैं ना, पहले आप बात सुनिए, मैंने लिखा है, आप कहते हैं तो कैमरा खोल के दिखा दे, तो अगर आपको यकीन नहीं है, नहीं तो आप खुद लिखिए ज़नीम का मानी गूगल में जाके, उर्दू में लिख के, वहाँ लिखा हुआ है। इसके और बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन खुलासा सबका सिर्फ इस कदर है कि ज़नीम वो शख्स है जो बुराई से मशहूर हो, और अमूमन ऐसे लोग इधर उधर से मिले होते हैं जिनके सही हसब नसब का और हकीकी बाप का नहीं पता नहीं होता। ऐसों पर शैतान का गलबा बहुत ज़्यादा होता है। और नीचे लिखा हुआ है कुरान.com तफसीर सूरा अल कलम 16। ठीक है ग्लोबल भाई, मैं ये चाहता था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पीर साहब खुद तर्जुमा फरमा दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पीर साहब बाकी जो तराजम है उनको वो नहीं मान रहे। तफसीर तबरी के अंदर जो तराजम मौजूद हैं, पीर साहब सुन लीजिए, नहीं हम सीखते हैं ना, चूँकि जी कीजिए। उतुल्लिन यकूल व हुवा उतुल वल उतुल अल जाफ अल शदीद फी कुफ्रिही। उतुल उस इंसान को कहते हैं जो बहुत सख्त हो अपने कुफर में, काफी दुश्मनी रखता हो इस्लाम के खिलाफ, उसको कहा जाता है उतुल। यह है मुफस्सर। अच्छा पीर साहब, आपको मानी मिल गई, अब मुझे इजाजत दे दो थोड़ी सी बात करने की। अभी बात तो पूरी होने दीजिए, अभी पूछ नहीं ज़नीम रहता है ग्लोबल भाई, रुकिएगा, वही ना, सुनने तो दीजिए। आगे वकुल्ल शदीद कवी फल अरब तुसम्मीही उतुल्लन। हर वो आदमी जो बहुत ही शदीद हो, बहुत ही सख्त हो, तनखू हो, उसको अरब उतुल कहते हैं। समझ रहे हैं? इसी तरह ये सब ये जी अब जब खत्म कीजिएगा, मुझे ये थोड़ा सा समझना आपसे। आगे अन इब्न अब्बास
قولہو ابن عباس نے فرمایا یہ جو قول ہے اللہ پاک کا اتل الآتل الشدید المنافق، اتل وہ شخص ہے جو بہت ہی سخت ہے، بہت ہی خلاف ہے، منافق شخص کو کہا جاتا ہے اتل. یہ ہے وہ بات. زنیم جاننا چاہتے ہیں؟ زنیم کو دیکھتے ہیں. اتل بعد ذلك زنیم الاتل الشدید. قال الاتل، آگے زنیم کا مطلب دیکھتے ہیں. الفاحش، ہائی با ایک منٹ دے دیجئے. جتنی دیر صاحب پیر صاحب آتے ہیں میں ذرا زنیم کا معنی پھر بتا دوں. وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ایک منٹ گلوبل بھائی ایک منٹ پیر صاحب کو بتا لینے دیں. اب وہ چونکہ پیر صاحب اب جو فرما رہے ہیں نا الفاحش اللعین. جی اچھا سنیں. الاتل ان قاسم مولى معاویہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اتل الزنیم. نبی سے پوچھا گیا اتل اور زنیم کا کیا مطلب ہے؟ قال الفاحش اللعین. فاحش لعین، بہت ہی برا انسان، بہت ہی فحشگو انسان. یہ ہے. کہاں آیا کہ میرے بھائی پیر صاحب آگے بھی دیکھیے نا، آگے بھی دیکھیے تھوڑا سا. نبی کا قول حدثنی یعقوب قال ثنا ابن علی. جی یہ آگے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آگے بھی یہ دیکھیں نا، اس میں نبی کا قول آ گیا نا اسی میں جو جی قال فاحش الخلق لئیم الضریبہ. اچھا تو ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے؟ تو اب فحش کا جی یہ نہیں، اس میں جو فاحش الخلق ہے اس کا معنی کیا ہوگا پیر صاحب؟ یعنی بدتینت ہے، یعنی بدخو ہے، بد کلام ہے. بدتینت کا معنی کیا ہوگا پیر صاحب؟ ایک انسان جو ہے بد کلام ہے اس کو کہتے ہیں خلق. حسن الخلق پیر صاحب شر الخلق. بد سیرت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بد سیرت انسان، حسن الخلق، یہ ہے وہ بات. بد سیرت انسان، سمجھ رہے ہیں؟ لعیم الضریبہ. آگے اتل بعد ذلك زنیم هو الفاحش اللعین. فاحش اللعین دیکھ لیں. اسی طرح آگے چلتے ہیں. تب کی سما من اصبح، یہ چھوڑ دیجئے. آگے اتل بعد ذلك زنیم قال ذلك الكافر اللعین. یہ دیکھیں اکرمہ کہتے ہیں کافر، جو کافر ہے لعیم ہے، بدخو ہے، بد کلام ہے، بد کردار ہے، وہ ہے زنیم. اسی طرح آگے چلتے ہیں. اتل بعد ذلك الفاحش، یہ وہی آیا. قال العتل الزنیم الفاحش اللعین. آگے شدید الاشر. آگے بعد ذلك زنیم ومعنی بعد في هذا الموضع معنی مع وتعويل الكلام اتل بعد ذلك أي مع العتل الزنیم وقوله الزنیم والزنیم في الكلام العرب المصلق بالقوم وليس منهم. وہ انسان جو اپنے آپ کو کسی قوم کے ساتھ تشبیہ دے اس میں سے نہ ہو. ومنه قول حسان بن ثابت وانت زنیم نط فی آل ہاشم. یہ دیکھیں کہاں ہے کہ وہ جو انسان، نہ نبی نے یہ فرمایا، نہ کوئی ایسی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے، وہ ولد الزنا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ نبی نے یہ فرمایا؟ اللہ نے فرمایا؟ اللہ نے کسی کو جو ہے ولد الزنا کہا؟ نہیں کہا. لیکن یہ مشہور کی گئی ہوئی باتیں ہیں بھائی. ہاں ہیں، میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں میں کہتا تو نہیں ہے، لیکن یہ مشہور کی گئی ہیں. ایک قصہ بھی مشہور کیا گیا ہوا ہے اس کے ماں کے بارے میں کہ بچہ نہیں ہوتا تھا باپ سے، تو اس نے جو ہے اپنے چرواہے سے ہی ایک کام کر لیا اور یہ پیدا ہوا. لیکن یہ بے بنیاد من گڑت کہانی ہے. مفسرین نے اس کو رد کر دیا سرے سے، لیکن پھر بھی یہ بات کی جاتی ہے. اور یہی بات قادیانی کیونکہ ہم نے کی ہے، بھائی سچ کو سنو، کیونکہ ہم نے کی ہے، یہی بات قادیانی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو مرزا نے یہاں پر گالی دی، وہ کہتے ہیں مرزا نے گالی دی، وہ کہتے ہیں پھر نبی نے بھی تو دی ہے. بھئی کہاں دی ہے؟ پھر پیش کرتے ہیں روایت کوئی، جبکہ وہ گالی نہیں ہے.
पीर साहब फिर इजाजत पेश करते हैं दीजिए, आप कुरान। किसी और जी को भी प्लीज, किसी और को भी इजाजत दे दें, बहुत हो गया। हाँ मैं आपको इजाजत है, बात जी कीजिए। शुक्रिया पीर साहब, थोड़ी देर अब सारे ग्लोबल भाई पहले 1 मिनट, पहले आबद ग्लोबल भाई भाई नहीं, 1 आबद मिनट। भाई नहीं, मुझे टाइम ये चाहिए। आबद भाई नहीं, मुझे टाइम चाहिए, मैं माजरत रखता हूँ आबद भाई। देखिए पीर साहब, मैं माजरत रखता नहीं हूँ, नहीं जब ग्लोबल भाई, तक मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। मैं रोटी बना रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात करना चाहूँगा। जो मैंने इससे इस्तदलाल लिया कि वो शख्स वो जो साबित हो किसी गया। कौम का नहीं है, लेकिन उससे तो ये तो साबित हो गया। वो साबित हो गई मैंने तो बात, ये बात की थी जी। उसी को गंदी नस्ल का कहते हैं, ये भी साबित हो गया साथ में। अच्छा पीर अस्कानी साहब, 1-2 मिनट की इजाजत दें ताकि मैं आराम सुकून से बात कर सकूं। आप प्लीज बार बार उतारने का बस करें, मैं काफी थक भाईजान गया बात बार सुनिए, बार बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए। बात यह है, ये साबित नहीं हुआ नबी के कलाम से, ये साबित नहीं हुआ अल्लाह के कलाम से, पहले बाकी लोग फैसला कर लेंगे पीर साहब। आपको नहीं साबित होना ना, 71 लोगों को साबित हो जाएगा। जो सुन रहे हैं ना, बात तो करने देना, बात तो ना रोकें आप, इस तरह ना करें। मैं बात आपको करने दूंगा, बात तो सुनिए ना। साबित हो गया ऐसा नहीं है भाई। आप बात ये है, पीर अस्कानी साहब, देखिए मैं अच्छे से ग्लोबल बात भाई कर सुन रहा हूं लीजिए, आपके साथ, आप इस सुन तरह लीजिए, ना सुन लीजिए, मैं आपको मौका दे देता हूँ। सुन लीजिए ना, आपने बात की, साबित हुआ ना, मैं कहता हूँ साबित नहीं हुआ, मुझे भी बात करने दीजिए ना। कोई बात नहीं, लोगों को साबित हो रहा है, वो लोग नीचे लिख रहे हैं। अच्छा, लोगों को साबित नहीं हुआ, सुन लीजिए। अल्लाह के कलाम से वलदुज़ना साबित नहीं हुआ, ना नबी के फरमान से साबित है। अरे भाई सुन तो लो, आप खुद से बातें बना रहे हैं ना अभी इधर उधर। अरे भाई सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो भाई, सुन तो लो। पीर अस्कानी, मुझे आदत है उस हद तक रखने की ना, आप इधर उधर की बातें भाईजान आपने क्यों कहा कि साबित हुआ, क्यों कहा? जनीम साबित नहीं हुआ मिर्जा, बताइए। नहीं, कैसे नहीं हुआ बताएं, उसने अपनी नस्लें नहीं बताई। सुन लो, मैं बताता हूँ, चलो पीर अस्कानी, बारी बारी बात कर लेते हैं। अभी सुन लो, जितनी बात आपने की सुनो। देखें, जनीम ना अल्लाह के कौल से साबित है कि वलदुज़ना का कहा जाएगा, ना नबी ने फरमाया, बल्कि नबी ने फरमाया अल-फाहिशल लईन, नहीं कहा वलदुज़ना, ना अल्लाह ने कहा है। हाँ, बहुत सारे अक़वाल हैं, कहे जाते हैं भाई।